Hello dear students, once again we are with a new video. Today we'll see a problem on isometric projection. We have a question of a hexagonal prism which is rested on HP on its base. Its side of base is 40 mm and the height is 60 mm. A right circular cone of base of diameter 30 mm and height 50 mm is placed centrally on the top of the hexagonal prism so that their axes coincide. Draw the isometric projection for the combined solid. So we have an assembly of two solids, right? And we have their dimension. So initially we'll draw an hexagonal prism on which a right circular cone is placed so that both of their axes they coincide, right? So we are asked with isometric projection. So whenever a question comes for isometric projection, we need to draw an isometric scale initially, right? So we draw a line, horizontal line, right? So now we take two angles. One will be at an angle of 30 degrees and other will be at an angle of 45 degrees, right? So this is at 45 degrees and this is at 30 degrees. So the line at 30 degrees is the isoscale. It is what? It is the isoscale, and the line which is drawn at 45-degree represents your true length, true scale, right? So it is basically the true scale. So we can represent with an angle for better understanding. So this is 30-degree angle, and then we have another angle of I'm marking at 45 degrees. This is 30-degree and this will be at an angle of 45 degrees, right? अभी हमें प्रॉब्लम में ये देखना है कि हमें कौन से डायमेंशंस दिए गए. One is 30, 50, 40 and 60. So these are the normal dimensions which will be used in the problem. So we convert them into isoscale, right? So हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रू स्केल से 45 डिग्रीज पे हम क्या करते हैं, लाइंस को, डायमेंशंस को मार्क करते हैं, राइट? सो इनिशियली वी ड्रॉ, फॉर एग्जांपल वी नीड one dimension, that is the base of the side of the hexagonal prism, that is 40 and its height is 60. So we mark. So ये normal scale ही है आपका, right? तो इस लाइन पे 40 mm मार्क किया आपने, 60 mm मार्क किया, फिर बाद में आपको 30 mm की भी ज़रूरत गिरेगी और 50 mm की भी ज़रूरत गिरेगी. सो ये सारे डायमेंशंस आपने मार्क कर दिए, राइट? सो दिस इज़ 30, 40, 50 and 60. ये मैंने मार्क कर दिए. Now what we do is, with the help of scale, we draw perpendicular line to this horizontal line. So this is your horizontal line. We draw a perpendicular line such that from the true scale it comes on the isoscale. So we get the projectors. So this is the projector which is falling on this isoscale, right? So we are transferring the points from true scale to isoscale, right? So you can say this as like 60i, 50i, 40i and 30i. So these are iso lengths and these are the true lengths, right? So for your understanding, I can, so this is true scale, this is isoscale. नॉर्मली एग्जाम में आपको ये स्केल बनाने के लिए 2 नंबर मिलते हैं. अब ये जो प्रॉब्लम है ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है नॉर्मली एग्जाम्स में प्रॉब्लम बनाने के लिए, राइट? और इसके लिए 2 नंबर रहते हैं, बाकी फिगर के लिए आपके तकरीबन 8 नंबर रहते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो विद. नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेक्सागन से. हेक्सागन का साइड कितना दिया है हमें,
40 mm. So we take distance of 40 in the compass and we draw अ सर्कल, क्योंकि हेक्सागोन बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको सर्कल रहेगा, और जितना साइड हेक्सागोन का है उतना आपका रेडियस सर्कल का उतना रहेगा, राइट। सो अभी जस्ट आपने देखा होगा मैंने स्केल से डिस्टेंस उठाया, यही गलती हम नॉर्मली करते हैं, हमें स्केल से डिस्टेंस नहीं उठाना है। अभी हमें 40 बोला है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रॉब्लम में पूछा गया है, तो हमें अभी जो भी लेंथ लेना है वो यहाँ से लेना है, गेटिंग इट, आइसोमेट्रिक स्केल से लेना है, राइट। प्रोजेक्शन के लिए आइसोमेट्रिक स्केल रहता है, ये ट्रू स्केल है, मार्केट में आइसो स्केल मिलता नहीं है, इसलिए हमने उसको आइसो स्केल बनाया है और यहाँ से डिस्टेंसेस लेंगे, राइट। सो 40 जो है हम यहाँ से पिकअप करेंगे, राइट। सो वी टेक अ डिस्टेंस 40 फ्रॉम हियर एंड वी ट्राई एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ गिवन डायमेंशन, राइट। तो ये आपका बन गया सर्कल, कंस्ट्रक्शन रहेगा आपका, लाइट बनाने की कोशिश करेंगे हम, राइट, जितना हो सके उतना, और ये वर्टिकल लाइन, right, with the same distance of radius in the compass we divide this into how many parts, 6 equal part, and we join them, we get a hexagon। और अभी ये जो हेक्सागन बनेगा आपका, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर में एनक्लोज करेंगे, वी विल एनक्लोज दिस हेक्सागन इनटू अ स्क्वायर, क्योंकि हमें इतना पता है कि स्क्वायर का कन्वर्शन होता है रोम्बस में, जब आप आइसो फिगर बनाते हो उसका, सर्कल का कन्वर्शन होता है एलिप्स में, राइट। लेकिन हेक्सागन का कन्वर्शन हमें पता नहीं, इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड है स्क्वायर का रोम्बस में, रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम में, देयरफॉर वी इनक्लूज दिस फिगर इनटू व्हाट, इनटू अ स्क्वायर। रही बात ओरिएंटेशन ऑफ हेक्सागन की, आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर हमें बोला है प्रॉब्लम में कि हेक्सागन की साइड इज परपेंडिकुलर टू वीपी, सो ऐसा ओरिएंटेशन रहेगा आपका, और बोला है कि पैरेलल, तो इसका ओरिएंटेशन टर्न हो जाएगा 90 डिग्री से, राइट। अभी इस हेक्सागोनल प्रिज्म पे यू हैव अ राइट सर्कुलर कोन जिसका डायमीटर कितना है 30 mm, राइट। सो 30 mm डायमीटर है, तो रेडियस कितना लगेगा आपको, उसका आधा, सो 15 ट्रू लेंथ पे ले लिया, उसको प्रोजेक्ट कर लिया, आइसो 15 मिल जाएगा आपको, ये डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे, राइट। एंड विद दिस डिस्टेंस व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ अ सर्कल, सो वी ड्रॉ अ सर्कल। अब इस सर्कल को भी आपको स्क्वायर में एनक्लोज करना है, राइट। वी एनक्लोज दिस इनटू अ square with the help of roller scale, right, rest you can erase it। so ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये फिगर हमने आइसो लेंस से बनाई है, so we label the corners and we label the figure, so let this be P, Q, R and S, these are the points, and this could be 1 2 3 4 5 and 6, so it is the labeling that will help us, right। so initially this amount of labeling is sufficient for us, and we proceed to draw। so what we do is we draw a line, right, we draw an horizontal line of a comfortable distance placed over here, and we mark a point over here, right, so this is the point, and we draw lines at 30 degrees, right? So at 30 degree we mark a point,
Now on this line, this is the length of the square जो हमें यहाँ पे रखनी है, राइट. सो इसमें से कोई भी कॉर्नर आप उठा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर क्यू ले लिया इसको, राइट. सो ये जो लेंथ रहेगी वो कहाँ पे आएगी? दिस लेंथ विल कम ओवर हियर एंड दिस लेंथ विल कम ओवर हियर, दैट वे. इफ दिस इज आर, क्यू की जगह अगर ये आर है तो उस केस में क्या रहेगा? ये लेंथ जो है, ये लेंथ इधर रहेगी और ये लेंथ इधर आएगी, राइट. सो चलो, फॉर मोर बेटरमेंट व्हाट आई डू इज, इसको मैं आर ले लेता हूँ, मतलब ये कॉर्नर आ गया. देखो हेक्सागोन का जो स्क्वायर रहता है, एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी रहती है, राइट. स्क्वायर एग्जैक्ट स्क्वायर है तो आपको एग्जैक्ट रोम्बस मिलेगा. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ, अभी ये सारे डायमेंशंस के हिसाब से आपने बना ली. अभी बनाना काफ़ी आसान है, बस अभी आपको करना क्या है? डिस्टेंसेस पिक एंड प्लेस करना है, राइट. सो यू टेक डिस्टेंस क्यू आर, so QR is on the left of R, so you mark Q over here, right. And we can draw a line parallel from this point, right. So we can draw a line parallel over here somewhere like this. Now R के side क्या है? S है, so we take a distance of S in the compass. So ये R के साइड लगा दिया इधर S, और इधर भी सेम लेंथ रहेगा S का. और विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइन बनाएंगे. दीज आर हमार आइसो लाइन्स, यू नो, विच आर पैरेलल्स टू आइसो एक्सिस, राइट. सो दिस इज हाउ यू गेट रेस्ट ऑफ द पोर्शन कैन बी इरेज्ड, right. So you can label this as, this is your P, this is your Q, this is R and this is S. So QR पे 0.3 है, QR पे 0.3 है और PS पे 6 है. 3 and 6 will come over here, right. So likewise you can take the distance, that is QR is equal to P6, right. So place the center over here, mark a point over here. Similarly place the center over here, mark the point over here. Next, now this is symmetric, right. So this distance Q2, P1, S5 and R4, this is almost same. So you can this pick up this length, this is equal to this. अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हर एक लेंथ यहाँ से उठा के यहाँ पे रखिए, राइट. सो दिस इज ऑन पी क्यू पे आपको ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे. सो ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और यहाँ पे मार्क कर दिया इस एंड से. इस एंड से सिमिलरली आई विल मार्क अ पॉइंट ओवर हियर एंड फ्रॉम दिस एंड आई विल मार्क अ पॉइंट ओवर हियर. ये बन गया आपका हेक्सागोन, राइट. सो हेक्सागोन को आप थोड़ा सा इनिशियली लाइट बना लीजिए, फिर बाद में इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. फिगर की खासियत यही है आइसोमेट्रिक में कि जितना लाइट बना पाओगे उतना लाइट बनाओ, राइट. और फिर जब आपका फिगर कंप्लीशन के कगार पे आ जाएगा, देन यू कैन, यू नो, विथ योर इमेजिनेशन यू कैन मेक द थिंग्स डार्क ऑफ डार्कर शेड. So this is how you get an hexagon, right. If you wish, you can label the points also. Now this is hexagonal prism, मतलब नीचे भी हेक्सागन ऊपर भी हेक्सागन. तो ये नीचे का फेस हो गया. अब इसकी हाइट कितनी दी है हमको? 60. हाउ मच? 60. सो 60 जो है हम यहाँ से उठा के यहाँ पे कट करेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल लाइंस बनाना पड़ेगा हर एक पॉइंट से. सो फ्रॉम एवरी पॉइंट वी ट्राई एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, राइट. वर्टिकल लाइन. So with the help of roller scale you can draw vertical lines from each point.
राइट. नाउ ये जो डिस्टेंस है आइसो 60 आपने कंपास में लेना है और कट करना है. राइट, ये यहाँ पे कट कर दिया. हर एक लाइन पे आप क्या करोगे, कट करोगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका हाइट मिल जाएगा प्रिज्म का. एंड देन ऑल दोस पॉइंट we can join to get the upper face of the hexagon, right? So upper face of the hexagon will be, like completely dark रहेगा. आप completely dark बना सकते हो. so अभी समय आ गया है चीज़ों को हाईलाइट करने का. सो आपको विजिबल रहेगा ये अपर फेस ऑफ द पिरामिड प्रिज्म एंड द लोअर फेस पार्शियली विजिबल रहेगा. राइट, नाउ वी नीड द सेंटर ऑफ दिस अपर फेस. सेंटर कैसे मिलेगा? नाउ लुक एट दिस फिगर. So if we connect 1, 4 and 2, 5 diagonals of the hexagon, we get the center. Similarly, we try and connect 1, 4 and 2, 5. 1, 4 and 2, 5. So I am connecting 1, 4 and 2, 5. The intersection of these lines will give me what? This will give me a center. Right? ये मिल गया अपर फेस का सेंटर, और यू कैन से हेक्सागोनल प्रिज्म का सेंटर. नाउ with the help of this isometric axes, these are isometric axes, you can say like this is x, y, and this vertical is z, or else length, height, and width. Right, so we try and draw parallel line along x. This line is parallel to the isometric axis. Right, similarly I will try and set the roller scale and I will draw a line passing through the center. ये लाइन मिल गई, तो मुझे क्या मिल गया, क्रॉस मिल गया. बराबर है, ये देखो ये क्रॉस मिल गया. सो दिस लाइन एंड दिस लाइन, पिछली जो दो लाइन से वो डायगोनल इंटरसेक्शन से सेंटर मिला, और जैसे सेंटर मिला तो आपको ये और ये क्रॉस मिल गया. राइट, नाउ ऑन दिस क्रॉस वी नीड टू एनक्लोज दिस स्क्वायर. तो स्क्वायर का बनेगा रोम्बस, तो यहाँ पे बनाएंगे हम रोम्बस कितने बाय कितने का, आइसो 30x30 का. राइट, सो हियर यू कैन ड्रॉ अ क्रॉस. राइट, एंड यू कैन लेबल द पॉइंट्स इवन. ये सर्कल का जो क्रॉस है उसको मैंने नाम दे दिए ABCD. ये जो क्रॉस है यही क्रॉस यहाँ पे हमने बनाया, इसका जो सेंटर है ये सेंटर यहाँ पे है. राइट, सो ए हमारा कौन सा साइड है, PQ साइड. राइट, सो PQ कहाँ पे है, ये PQ है, तो इधर क्या आएगा आपका A आएगा. राइट, और सारे डिस्टेंसेस वैसे भी सेम है. ये जो मैं बता रहा हूँ ये पेंटागन हेक्सागन जो फिगर रहेंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड उसमें काम आएगा. नाउ हियर वी टेक दिस डिस्टेंस इन द कंपास. राइट, so that is if the center is O, OA, OC, OD and OB is all what same, so we mark over here on this lines and we try and get the points. Right, and अभी 4 पॉइंट मिल गए. अब आपके पास आइसोमेट्रिक एक्सिस है, इस एक्सिस के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे यहाँ पे. राइट, सो ये बन गया आपका रोम्बस. इस साइड लाइन बनाएंगे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट जो अभी आपने प्राप्त किए है. राइट, ये आपका एक्सिस को लाइन पैरेलल है, सेट किया रोलर स्केल, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो अभी आपको क्या मिल गया, रोम्बस मिल गया. बराबर, सो दिस इज द रोम्बस, मतलब ये स्क्वायर जो है उसका कन्वर्शन हो गया रोम्बस. अब सर्कल का कन्वर्शन होगा किसमें, एलिप्स में. नाउ वी नो द फोर सेंट्रिक मेथड. राइट, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं वापस से रिपीट करूंगा. फोर सेंट्रिक मेथड में यू हैव गॉट this rhombus and this rhombus has got
angles. So this is acute angle less than 90. This is also acute angle. This is obtuse angle which is greater than 90. obtuse obtuse acute acute बराबर. और जो साइड्स है हमारे, हर एक साइड के हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक मिड पॉइंट आ चुके हैं. सो व्हाट वी डू इज we take this distance in the compass, radial distance in the compass from this point. दिख रहा है आपको डिस्टेंस, राइट? सो ये डिस्टेंस लेंगे और आर्क लगाएंगे, बराबर. सेंटर रखे ऑब्ट्यूज पे, ऑब्ट्यूज पे रखे और ये आर्क लगाए. सो दो सेंटर के हेल्प से दो सेगमेंट्स मिल गए हमें एलिप्स के, राइट? सो नाउ ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है इसे हम ये मिड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, राइट? You connect this with this midpoint and you connect this with this midpoint, right? Similarly, this midpoint and this midpoint obtuse angle, हम इस midpoint को इस obtuse angle से connect करते हैं और इस को इस point से, राइट? सो ये इंटरसेक्शन ऑफ रेडियल लेंथ जो है, जो सेगमेंट हमने जस्ट बनाई, हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं? सेंटर्स मिलते हैं, राइट? सो ये दूसरे दो नए सेंटर हो गए. और विद दिस सेंटर एंड दिस एज अ रेडियल डिस्टेंस, राइट? देखो ये सेंटर और ये रेडियल डिस्टेंस. व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ द रिमेनिंग third of the portion. Similarly, this center and this radial distance, right? We draw the remaining. फ्री हैंड से नहीं बनाना है, राइट? तो ये बन गया आपका सर्कल का एलिप्स. चलो आगे बढ़ते हैं. एक्सिस कितना दिया है हमें? हाइट इज हाउ मच? 60. सो वी हैव डायमेंशन, लेट अस से दिस इज लाइन, राइट? ये परपेंडिकुलर होना चाहिए एग्जैक्टली. और 60 बोला है तो हम क्या करते हैं? वी ड्रॉ द चेन लाइन ऑफ द एक्सिस, राइट? डॉट डैश डॉट डैश. राइट? सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन. सो 60 जो लेंथ लेना है, गलती नहीं करना है, स्केल से नहीं उठाना है. कहाँ से उठाना है? आइसो 60 उठाना है, राइट? सो वी पिक अप लेंथ आइसो 60 in the compass and we mark it over here, right? And we try and connect the apex of the cone and the ellipse. जो ये ellipse है ना, ये tangential रहेंगे lines, बराबर. ये जो ellipse मिला है इसको हम ये जो लाइन बनाएंगे tangential बनाने की कोशिश करो आप. तो ये ऐसा मिलेगा आपको कोन. और रही बात जो अंदर का सेगमेंट, इसको आप थोड़ा सा फेंट बनाना है या फिर आपने इसको इरेज करना है. अब जब आप इलिप्स बनाते हो तो आपको पता है कि ये पोर्शन ऐसा रहेगा और ये इनर पोर्शन इनविजिबल रहेगा. डॉटेड लाइंस नहीं दिखाना है, राइट? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड में हिडन पोर्शन को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आइसोमेट्रिक में वी डोंट रिकमेंड हिडन लाइंस विथ, राइट? वी रिकमेंडेड ऑफ लाइटर शेड या फिर उसका अस्तित्व ही मिटा दो, राइट? तो ये जो साइड है कोन के पीछे है इसलिए लाइट है और बाकी ऐसा है, राइट? सो यू कैन शो दिस एंगल एज 30 degrees, दिस ऑल्सो एज 30 degrees, राइट? सो हमने जो गिवन फिगर में डायमेंशंस दिए थे, हमें क्वेश्चन में जो भी डायमेंशंस दिए थे, डायमेंशन के हिसाब से हमने उसको कन्वर्ट किया आइसो स्केल में. आइसो स्केल के हिसाब से हमने इस फिगर को बनाया. ये ऑर्थोग्राफिक है बेसिकली. ये क्या है? इसका टॉप व्यू है. दिस फिगर
इज द टॉप व्यू ऑफ दिस फिगर। इस फिगर का ये टॉप व्यू है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये फिगर भी दे सकते थे, लेकिन हमें वर्डिंग के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन से हमने टेक्स्ट से फिगर बनाया और फिगर से इसको ऐसा बनाया। सो आशा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया, बनाने समय आपको और आनंद मिलेगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।